Today's topic is insertion sort in the algorithm. Insertion sort is the most important topic of data structure and sorting also and sorting part because in insertion sort is mostly used in sorting technique. Okay, so today we are discuss about the insertion sort. Mm, We will discuss the insertion sort algorithm, and the working procedure of insertion sort is also simple. This article will be very helpful and interesting to students as they might face insertion sort as a question in their examination. So it is important to discuss the topics and the uh, time complexity of insertion sort. And in this scenario, the time complexity of insertion sort in best case, we find the time complexity of insertion sort is big of n because in ascending order, the time complexity comparison is 0, 1, 1, 1, 1, and when we swipe the element of ascending order, we also get the value is 0. Okay, so in the best case, according ascending order, the time complexity of insertion sort is big of n, and the swipe and the swiping number is also big of 1. And when we find the worst case, we notice that the comparison is 0, 3, 2, and n minus 1, and the swipe of the worst case is 0, 2, 3, and n minus 1. So in this case, the worst case, the time complexity is big of n square. Am I audible? Nityananda Pan, Yes, sir. Zima Kumari Pan, दोनों है. Today we are discuss the insertion sort. Okay. In previous class we discussed bubble sort and quick sort, and today we discuss the insertion sort. Insertion sort is the most important topic because in sorting technique, the commonly we used in insertion sort, because the technique of insertion sort is very easy and the time complexity is very low in best case as well as the worst case and average case. Okay. Uh, only 2 students. So we start the part of insertion sort in 1 year 2 minutes later, and we discuss the definition of insertion sort. Skin visible na? Yes, sir. Okay. So what is insertion sort in data structure? Insertion sort is a simple sorting algorithm that works similar to the way you sort playing cards in your hand. The array is virtually split into a sorted and unsorted part, and values from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the sorted part. So we discuss the example of insertion sort, then you find the process of insertion sort. जो
ताश अगर समझो प्लेइंग कार्ड्स में भी होता है, और अगर कोई नंबर का जो डिजाइन होता है, मैं प्लेइंग कार्ड से ही बोल रहा हूँ। प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या नंबर होता है, 1 को डिनोट होता है टेका से, समझो वो 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 होता है, फिर जे, फिर क्यू, फिर के, फिर टेका जो ए होता है, ठीक है। तो अगर तुमको प्लेइंग कार्ड्स में समझो तुम्हारे पास एक एक करके पांच पांच 5 नंबर्स ऑफ कार्ड्स है तुम्हारे पास। समझो पहले तुम एक कार्ड पिक किए, उसका नंबर है 4, ओके। फिर समझो तुम एक कार्ड पिक किए, उसका नंबर है 9, तो तुम क्या करोगे, 4 4 के बाद 9 रखोगे। फिर समझो तुम्हारे पास एक कार्ड आया है, उसका 2, तो तुम जब 4 के बाद 9 को रखोगे, 2 को, 2 जो कार्ड पिक किए हो वो तो 9 के बाद नहीं रखोगे, वो तो 4 के आगे रखोगे ना, 4 के पहले वो रहेगा। तो तुम्हारे कार्ड का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 2 4 फिर 9। समझ में आ रहा है? इंसर्शन सॉर्ट है, तुम जब डेटा को पिक कर रहे हो तो डेटा को तुम एक एक करके पिक करोगे, और उसका जो पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, उस करेक्ट पोजीशन पे क्या करोगे, उस डेटा को रख दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास समझो हो गया 2 4 9, फिर समझो तुम्हारे पास एक कार्ड पिक किए, उसका नंबर है 7, तो तुम क्या करोगे, 7 को जो 9 है, 9 के ऊपर तो नहीं रखोगे, 9 के नीचे रखोगे। इसलिए अगर हम लोग, तुम्हारे पास 5 कार्ड है और 5 नंबर है, उसको एक एक करके तुमको मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, उसको एक सिक्वेंशियल जो एक प्रोसेस है, एक मैनर है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें तुम उसको पुट करोगे। तो इंसर्शन सॉर्ट इज ए simple sorting algorithm that's works similar to the way you sort playing cards in your hand, and the array is virtually split into a sorted and unsorted part, and value from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the sorted part. And we also discuss the insertion sort algorithm, and the working procedure of insertion sort is also simple. working procedure जो है वो बहुत ही easy है insertion part का, and this article will be very helpful and interesting to the student as they might face the insertion sort as a question in their examination. So it is important to discuss the topics, because अगर हम लोग जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ज्यादा पे वो यूज होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के पहले मैं एक डिस्कस करूंगा इंसर्शन सॉर्ट में काम कैसे होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एंड एल्गोरिदम में भी बोल सकता हूँ, जो सिंपल पॉइंट है, टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से बड़ा तक जो है, उसको उस तरीके से हम लोग एक एरे को सॉर्टिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, iterate from array 1 to array n over the array, compare the current element key to its predecessor, and if the key element is smaller than its predecessors, and compare it to the elements before, and move the greater element one position up to make space to the swiped element। तो यहाँ पर मैं देखो इंसर्शन सॉर्ट का काम कैसे होता है। समझो दिस इज ए एरे एंड द एलिमेंट ऑफ द एरे इज अनसॉर्टेड, we apply the insertion sort algorithm and we sorted the array in this procedure. So we can start the sorting of the array. First in this process we compare the 4, okay, 4 and 3, and 4 and 3 is the greater than of 4, then so 3 is swipe or
or rearrange the position of 3 and 4. So now we stand the position of 3, 4 and 2 is a key position. Okay, फिर 10, 12, 1, 5, 6 जिस तरीके से वो वैसे ही रहेगा. फिर 2 क्या करेगा, इस 4 और 3 के साथ वो कंपेयर करेगा. उसका नंबर जो है वो बड़ा है या छोटा है, वो इस ये दोनों के बीच में कंपेयर करेगा, क्योंकि 2 4 एंड 3 से छोटा है तो इसलिए 2 रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो गया, 2, 3, 4 देन 10, 12, 1, 5, 6 इस तरीके से 10 क्या है, इसमें 10 जब एक की पोजीशन है, 10 की पोजीशन है और इस 4 के साथ ये देखो यहाँ पर जो हो गया, इसमें से क्या हो गया, इसका जो लेफ्ट साइड है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. सो इफ 10 नंबर इज ग्रेटर देन 4, सो यहाँ पर क्या होगा, सॉर्टिंग नहीं होगा, वो 10 खुद की पोजीशन पे यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है ये तो सॉर्टेड है. इसलिए अगर इस एलिमेंट से बड़ा हो गया तो इसमें क्या होगा, वो हर एक एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. अगर इसमें क्या है, देखो 2 क्या है, 4 से छोटा है, इसलिए 2 4 से कंपेयर हो गया, 4 से कंपेयर हो गया तो ये स्वाइप हो गया. फिर 2 का पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा और 4 का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा. फिर ये जो 2 है, 2 क्या होगा, यहाँ पर जो 3 है 3 से कंपेयर करेगा. ठीक है. ये मैं एल्गोरिदम जब यूज करूंगा, एल्गोरिदम में बोल दूंगा कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है. लेकिन यहाँ पर जो देखो 10 है, 10 डिजिट क्या है, 10 डिजिट 4 से बड़ा है. इफ 10 इज ग्रेटर देन 4 देन यहाँ पर क्या होगा, वो जो एल्गोरिदम है वहां पर काम नहीं करेगा, 10 खुद की पोजीशन में रह जाएगा और जो की वैल्यू है, की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा. सो फिर क्या हो गया, की वैल्यू 12 पर शिफ्ट हो गया. फिर क्या होगा, 12 और 10 से कंपेयर होगा तो 12 इज ग्रेटर देन 10, सो 12 यहाँ पर रह जाएगा. फिर क्या होगा, 1 फिर से 1 क्या होगा, 12 से कंपेयर होगा, फिर 12 एक पोजीशन राइट में आ जाएगा. फिर 10 से कंपेयर होगा, 10 एक पोजीशन राइट में आ जाएगा. फिर 1 से कंपेयर होगा, 1 एक पोजीशन, 4 से कंपेयर होगा, 4 एक पोजीशन मूव हो जाएगा. फिर 3 से, फिर 1 2 से, फिर 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये हो जाएगा. ठीक है. फिर देखो, फिर 5 है, 5 12 से क्या है, छोटा है, इसलिए 12 से कंपेयर हो जाएगा. फिर 10 से कंपेयर होगा. फिर जब 5 4 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से ये जो अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे यहाँ पर एक एक करके पोजीशन वो चेंज होगा एंड लास्ट वी विल गेट द सॉर्टेड एरे. ओके. एंड इंसर्शन सॉर्ट, ये तो मालूम हो गया इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है. कोई भी प्रॉब्लम है? हेलो. नो सर. देखो सॉर्टिंग तो तुम लोग पहले ही कर चुके हो और मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलना. और जो एक एक प्रोग्राम मैं यहाँ से करा दूंगा, जो प्रोग्राम रन करता है, प्रोग्राम का प्रोसीड्यूर क्या है और एल्गोरिदम क्या है. ठीक है. सो देखो, इंसर्शन सॉर्ट वर्क सिमिलर टू सॉर्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इन हैंड. it is assumed that the first card is already sorted in the card game and then we select an unsorted card. समझो, और इसमें जो एग्जाम्पल रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल है, ताश का जो मैं एग्जाम्पल दिया, ताश का एग्जाम्पल में और एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है देखो, हम लोग जब कोई भी, मैक्सिमम लोग तो ताश वहां पर खेलते हो, ताश कैसे खेलना है जानते हो. तो अगर हम लोग ताश, पहले क्या होता है, शाफिल हो जाता है, एक एक के पास 8 या 10 या 12 या 13 करके ताश मिल जाता है. फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक ताश को हम लोग पिक करते हैं. एक एक ताश को समझो तुम्हारे पास 8 ताश है और 12 ताश है और 13 ताश है, कार्ड है. ठीक है. तो एक एक कार्ड को हम अगर पिक करोगे तो क्या होगा, हम कार्ड को एक सॉर्टिंग ऑर्डर में हाथ में ले लेते हैं. तो इस तरीके से एरे में क्या है, एरे में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पिक करेंगे.
ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को छोड़ दो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले वी विल पिक द नंबर ऑफ 4, फिर हम लोग क्या करेंगे, वी पिक द नंबर ऑफ 3, 4 और 3 के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर नंबर 2 को हम लोग पिक करेंगे, 2 विल कंपेयर विथ द नंबर ऑफ 4 and 3, देन वी विल पिक 10, 10 ऑल्सो कंपेयर विथ 2, 4, 3 एंड फिर 12, एक एक करके हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। And selector unsorted the card is greater than, and the first card it will be placed at the right side, and otherwise it will placed at the left side. Similarly, all sorted cards are taken and put their exact place. Okay. So we will discuss देखो एक एरे आ रहा है इंसर्शन सॉर्ट का 40, 20, 60, 10, 50 या पीडीएफ जो पीपीटी फाइल है वो दिखा रहा है स्क्रीन पर। यस सर। पीपीटी फाइल ही दिखा रहा है ना? यस सर। ओके, यहाँ पर देखो, अब ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का एक एग्जांपल आ रहा है। यस सर। 40, 20, 60, 10, 50, 30। देखो इंसर्शन सॉर्ट का एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं पहले डिस्कस करता हूं फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। देखो, नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, let's take an unsorted array. The unsorted array is 40, 20, 60, 10, 50 and 30. It will be easier to understand the insertion sort by this example. Okay, so let's the element of array are we taken 40, 20, 60, 10, 50 and 30. Okay, initially the first two elements are compared in insertion sort. Initially the first two elements 40 and 20 are compared in insertion sort. Okay, so 20 is greater than 40, so that's why 20 or 40 is swipe 20, that means both elements are already that means these elements are in not ascending order, that's why we swipe the two element and we will get the result 20, 40, 60, 10, 50, 30. Okay, and next we compare the here 40 is the key element, 40 is the position and 60 is the key element, and next we compare the 60 and 40. Okay, in this position 60 is the greater than of 40. Okay, and 20 and 40 is already in ascending order, so in this position this both the three elements are already in ascending order. Okay, देखो 40, 20, 40, 60, these three elements are already in ascending order, so for now this position is right position, so we did not swipe the three element, and next we compare 60 in the element of 10 and the 10 is the less than of 60, that's why we swipe the element of 10 and 60. 60 moves the right one and 10 replace the position of 60, then we compare the 10 and 40. Okay, and we will see 10 is the less than of 40, so here also the same case, and next we compare 20 and 10 and the position we get 10, 20, 40, 60, and in the same scenario is work in the insertion sort, and we will get the result 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए कैसे काम करता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। ओके, यहाँ पर
थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एल्गोरिदम इज द मेन पार्ट ऑफ द सॉर्टिंग। देखो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट जे इज इक्वल टू 2 टू ए लेंथ। ओके, यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दिखाया था, जे हम 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 से हम लोग क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो हम तो दो के बीच में कंपेयर करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो हम लोग जो की एलिमेंट लेंगे वो हर वक्त जो सेकेंड पोजीशन में जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग की एलिमेंट हिसाब से की एलिमेंट की तरीके से हम लोग उसको काउंट करेंगे। सो जे जे इज द नंबर ऑफ पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, एंड वो कंपेयर करेगा किसके साथ, होल एलिमेंट के साथ वो कंपेयर करेंगे, एक करके होल एलिमेंट्स, ठीक है। सो की एलिमेंट क्या है, ए जे, की एलिमेंट ए जे। देन यहां पर नोटिस करो आई इज इक्वल टू जे माइनस वन। जे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे जो है उसको हम लोग जे बोला, तो आई इज इक्वल टू जे माइनस वन, मतलब पहला पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। आई इज इक्वल टू 40 एंड जे इज इक्वल टू 20 हो गया। फिर जो यहाँ पर जो लूप हम लोग यूज करेंगे, जो मैं वहां पर डिस्कस कर रहा था, मैं बोल रहा था, यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो है 40। अगर जीरो नहीं होता तो वो क्या होता, लूप में काम नहीं करता। आई इज इक्वल टू जीरो एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। ए ऑफ आई मतलब क्या है, 40, 40 ग्रेटर देन की। देखो मालूम हो रहा है 40 ग्रेटर देन की का वैल्यू यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ की इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ आई इज 40। सो यहाँ पर दो जो पॉइंट है, आई ग्रेटर देन जीरो एंड ए आई ग्रेटर देन की, ये दो जो फॉर्मूला है वो फॉलो कर रहा है। इसलिए यहां पर क्या होगा, ये लूप में इंसर्ट करेगा। अगर इस दोनों के बीच में एक भी फॉलो नहीं होता तो ये क्या होता, जो पोजीशन पे जो है वो रह जाता और नेक्स्ट पे मूव करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई मतलब 40, 40 इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो एंड ए आई का वैल्यू क्या है 40 एंड ग्रेटर देन की का वैल्यू क्या है 20। सो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। फिर क्या होगा देखो, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई, मतलब क्या है देखो, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई, इसका मतलब है 40 शिफ्ट द पोजीशन ऑफ 20। ए आई में जो वैल्यू है, ए आई में वैल्यू क्या है 40, ए आई में जो वैल्यू है वो आई प्लस वन, आई प्लस वन मतलब वो एक घर पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड है, कार्ड में क्या करता हूं, एक कार्ड है फिर एक कार्ड ले रहा हूं, तो दोनों के बीच में कंपेयर होता है। सो व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स, then we follow the algorithm and ai plus 1 is equal to ai. That means ai moves the number of one position in right side. Okay, so यहाँ पर जो 40 नंबर है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, आई ग्रेटर देन जीरो एंड ए आई ग्रेटर देन की का वैल्यू 20 है और आई का वैल्यू 40, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए आई इज इक्वल टू ए आई, मतलब ए आई का जो वैल्यू था वो एक घर पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। ओके, तो जीरो से आई इज इक्वल टू आई माइनस वन मतलब क्या हो गया, इसका जो नंबर है वो एक घट जाएगा और 20 जो पोजीशन है यहाँ पर देखो, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू की, आई का वैल्यू क्या क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया आई माइनस वन, तो सो आई माइनस वन माइनस प्लस वन मतलब आई, सो की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ आई इज द पोजीशन ऑफ की। ओके, आई का वैल्यू आई माइनस वन हो गया और यहाँ पर क्या होगा, हो गया की का पोजीशन क्या होगा आई प्लस वन, इसका मतलब वन वन घट जाएगा तो
की का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई पर की का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, स्वाइप हो गया, देखो ठीक है। कोई भी दिक्कत है यहाँ पर बोलो। हेलो, यस यस सर। सर। बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, मेन जो फॉर्मूला है वो ए जो है आई ग्रेटर देन जीरो, हम लोग जो दो नंबर के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या देख लेंगे, आई ग्रेटर देन जीरो वो तो हर वक्त रह जाएगा, और ए आई ग्रेटर देन की हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड पोजीशन पे जो है स्टार्ट करने के टाइम वो की वैल्यू होगा, और आई वैल्यू ए हो गया। आई वैल्यू अगर ग्रेटर देन की वैल्यू हो गया तो क्या होगा, वो जो लूप है लूप के अंदर वो लूप के अंदर वो चला जाएगा और वहां पर कंपेयर करेगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, आई ए आई प्लस वन इजिकल टू ए आई, आई प्लस वन इजिकल टू ए आई, मतलब आई का जो वैल्यू है वो एक नंबर तक मूव करेगा राइट में, ठीक है, और की का जो वैल्यू है, की का वैल्यू क्या होगा, आई प्लस वन, लेकिन यहाँ पर क्या है मैंने डिनोट किया आई इजिकल टू आई माइनस वन और आई प्लस वन, सो की का वैल्यू जो है वो आई पोजिशन पर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 20 यहाँ पर आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये एक मूव हो जाएगा, की जो है की मूव हो जाएगा, नंबर यहाँ पर आ जाएगा लेकिन की मूव हो जाएगा, ठीक है। तो की ए तो दो सॉर्टेड हो गया, 20 और 40 सॉर्टेड हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, 60 आ गया। 60 देखो, 60 अगर मैं 60 फिर से इस तरीके से मैं कंपेयर करूंगा तो क्या हो गया, when we compare the value of 60 with the previous value of I, so I greater than 40 and AI मतलब 40 ग्रेटर देन 60 हो रहा है, की तो यहाँ पर हो गया की, सो की लेस देन है क्योंकि 60 तो बड़ा है 40 से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो की है की मूव हो जाएगा, ठीक है, की आई प्लस वन पे मूव हो जाएगा। सो क्या हो गया, देखो 60 मूव हो गया 10 पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, 10 पे प्रोसेस क्या है, देखो 10 फिर से यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगा, आई ग्रेटर देन जीरो, आई ग्रेटर देन जीरो, आई तो 60 में आ गया, ये तो सॉर्टेड प्रोसेस है। अगर आई ग्रेटर देन जीरो हो गया की 10, सो यहाँ पर देखो 60 ग्रेटर देन की, सो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 60 से कंपेयर होगा तो 60 10 के पोजीशन में आ जाएगा और 10 60 के पोजीशन में आ जाएगा। फिर इसमें सेम चीज होगा, 10 20 40 से कंपेयर होगा, 10 अगर 40 से कंपेयर होगा तो क्या होगा, 10 फिर से 40 के प्लेस पे आ जाएगा और 40 10 की प्लेस पे आ जाएगा। फिर 10 20 से कंपेयर होगा, सो 10 20 के पोजीशन में आ जाएगा और 20 10 के पोजीशन में। सो हम लोग जो सॉर्टेड एरे मिलेगा यहाँ पर वो क्या क्या मिलेगा, 10 20 40 60, ओके। इस तरीके से जो 50 और 30 है वो सेम चीज रिपीट होगा, सेम प्रोसेस, ओके। So the algorithm of the insertion sort is here, and this is the most important part of the insertion sort. And also when we write the program of insertion sort, the main process is the key process and the I process, okay. And now we discuss the time complexity of the insertion sort, okay. इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो, मैं बोल दूंगा। इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में कोई भी प्रॉब्लम है, और इंसर्शन सॉर्ट में हाउ टू वर्क द एल्गोरिदम इन इंसर्शन सॉर्ट एंड हाउ टू सॉर्टेड द एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, कोई भी प्रॉब्लम है? Okay, so now we discuss the time complexity of insertion sort. Here we find the three time complexity: best case, worst case, and the average case. Okay, so now we discuss
the time complexity of insertion sort in best case, average case, and worst case. We will also the space complexity of insertion set we will find. And when we discuss the best case time complexity, when the best case time complexity occurs, समझो इन दिस प्रोसेस हम लोग कब बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर मिलेगा, बोलो कोई भी एक बोलो। बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो एरे है, इस एरे कौन सा पोजीशन में रहेगा, तब हम लोग बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का मिलेगा। तुम बोलो तो कोई भी एक। सर बिग ऑफ एन। वो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर है बिग ऑफ एन। ओके, मैं पूछ रहा हूं ये जो नंबर है ना, 6 नंबर 40, 20, 60, 10, 50, 30, ये कौन सा पोजीशन में रहेगा, तो हम लोग बेस्ट केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है वो हम लोग बोल पाएंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। बोलो सर तो सारा अरे जो सॉर्टेड रहेगा तभी बेस्ट केस होगा। सारा एरे सॉर्टेड रहेगा, लेकिन उस सॉर्टिंग प्रोसेस असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर उस सॉर्टिंग प्रोसेस समझो डिसेंडिंग ऑर्डर में रह जाएगा तो हम लोगों को नहीं मिलेगा बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके ठीक है, अगर जो एरे है उस एरे सॉर्टिंग रहेगा और वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। देखो यहां पर मैं वही डिस्कस कर रहा हूं, बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तभी मिलेगा जब ये नंबर क्या होगा, एक असेंडिंग ऑर्डर पे ये नंबर रहेगा। देखो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर पे ये नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, सो यहां पर देखो कंपैरिजन क्या आएगा, देखो 10 तो पहला नंबर 10 ही रहेगा, तो इसलिए 0। 10 को 20 से हम कंपैरिजन करेंगे तो एक ही कंपेयर होगा, फिर 20 को 30 से कंपेयर करेंगे तो एक ही कंपेयर होगा, फिर 30 को 40 से कंपेयर करेंगे तो एक ही होगा। तो इसमें कंपैरिजन जो होगा वो एक एक करके आएगा। और स्वाइप तो यहाँ पर करने का जरूरत ही नहीं है, here we did not here we can't swipe, so because the number of the position is already in ascending order, that's why यहाँ पर कोई भी स्वाइप करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ द पोजीशन इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए यहां पर क्या हो गया, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, n-1 तक यहां पर होगा। ठीक है, लेकिन n-1 इन अपर बाउंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिग ऑफ n लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग बिग ऑफ n लिखते हैं। ठीक है, बिग ऑफ n हम लोग बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हाई वी write down why we write the time complexity of the best case is big of n, because in the comparison result we will get n-1 तक, क्योंकि पहला जो है वो तो 0 है, इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो अगर n तक हम लोगों का एलिमेंट रहेगा तो n-1 तक कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन द अपर बाउंड केस we will write the complexity of the best case in insertion sort big of n. Okay, and the space जो स्वाइप जो है, स्वाइप का जो रिजल्ट मिलेगा, स्वाइप वो उसका क्या होगा, स्वाइप तो देखो 10 और 20 के बीच में स्वाइप करना नहीं पड़ रहा है, 20-30 के बीच में स्वाइप नहीं करना पड़ता है, 30-40 के बीच में भी स्वाइप नहीं करना है, एंड 40-50 के बीच में स्वाइप नहीं करना है। तो इसलिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बिग ऑफ एन, क्योंकि ये तो एन नंबर तक ही है। तो बेस्ट केस में क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन एंड स्वाइप बिग ऑफ 1। ओके, एंड इन वर्स्ट केस में क्या होगा, देखो वर्स्ट केस तब आएगा जब कंपैरिजन बहुत सबसे ज्यादा करना पड़ेगा और स्वाइप भी सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वी राइट डाउन द this number in the descending order like 60, 50, 40, 30, 20, 10, and this case the comparison is in the first phase, 60 is starting point, that's why we write down 0. Next we compare 2, 3, 4, 5,
इस तरीके से जितना n तक लेंगे तो n तक आएगा। एंड ऑल्सो वी गेट द स्वाइप पोजिशन ऑफ दिस नंबर ऑल्सो 0 2 3 4 इस तरीके से होगा। सो इन ओट्स केस क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1/2 and in upper bound case we will write down the time complexity of the uh, insertion sort big of n square. Okay, and the swipe is also big of n square, and in average case the same result in which we get in the oats case. Okay, so यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम है इंसर्शन सॉर्ट में? इंसर्शन सॉर्ट में मैंने बोल दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रहा है, बेस्ट केस में कैसे आ रहा है, ओट्स केस में कैसे आ रहा है, और एवरेज केस में कैसे आ रहा है। एंड दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। एल्गोरिदम इन इंसर्शन सॉर्ट विल कंपेयर द टू एलिमेंट वन बाय वन, एंड व्हाइल वी विल identify the key value, and the key value is 2 to the a length. Okay, key value 2 to the n length तक वो वेरी करेगा। और क्या होगा, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू j-1, इसका मतलब जहां पर स्टार्ट करेंगे उसका पहले जो है वो i का वैल्यू लेंगे। फिर क्या होगा, i + 1 = ai, मतलब i का जो वैल्यू है वो एक मूव करके पहला पोजीशन पे, j का वैल्यू है वो मूव करके i का पोजीशन पे आ जाएगा, और जो की वैल्यू है वो एक 1 राइट साइड में मूव कर लेगा। ठीक है, फिर इफ द की पोजीशन इज लेस देन इन ai, so the loop is insert, and otherwise the position is same and the key value is move in the next position. Okay, so in the algorithm, insertion sort algorithm, we used to arrange the array in sorting manner, and next we find the time complexity of base case, average case, and the worst case. Okay, so insertion sort में कोई भी और प्रॉब्लम है? So next class we will discuss the merge sort, and लैब में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट का जो लैब है वो तो बाबल सॉर्ट का एक लैब हम लोग किया है। फिर थर्सडे को इंसर्शन सॉर्ट और मार्च सॉर्ट का एक लैब हम लोग कर लेंगे। इस तरीके से सॉर्टिंग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल टुडे क्लास एंड ओके। और एक बात, यहाँ पर जो मैं जो बोलता हूँ वो यूट्यूब क्लास में मैं अपलोड कर देता हूँ, वो एक बार देख लेना, और एक नोटबुक रेडी कर लेना, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग मैं करा रहा हूँ वो एक नोटबुक पे कॉपी कर लेना। वो बाद में जो तुम्हारा लैब एग्जाम होगा वो मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है जो एग्जाम होगा, एग्जाम में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसमें से ही क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, तो वो कर लेना। ओके सर, कॉपी में लिख के सबमिट करना जरूरी है प्रोग्राम? देखो, कॉपी में लिख लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, मैंने पहले दिन जो बोला वो कॉपी में नोट नहीं किए हो? नहीं सर, वो सॉफ्ट कॉपी है कंप्यूटर में, तो वो ओके, नहीं ठीक सबमिट है, कर सकते। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी में करोगे तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेल कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। सब प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए या फिर ऐसे ही कोई रूल कॉपी में कर सकते देखो, सॉफ्ट कॉपी में भी भेजोगे तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो मैम क्या बोल रहे हैं वो मैम से मैं पूछ लूंगा एग्जाम के टाइम पर। मैम अगर बोला, बीएस मैम तो तुम्हारा क्लास ले रहा है, वो शायद सर्चिंग पढ़ रहा है ना मैम, इन प्रोग्रामिंग बता रही है। लीनियर सर्च। आज तो लीनियर सर्च हुआ शायद। ठीक है, वो देखो, सॉर्टिंग सर्चिंग के बाद ग्राफ और ट्री है। ठीक है, और लिंक लिस्ट है। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना देर हो सके, जितना तक, फिर बाद में तो प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना कुछ।
कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं हम लोग बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा तो एडमिशन बहुत देर से होता है ना लेटरल में। फिर अगर तुम्हारा जो रेगुलर जो बैच है उसके साथ कंपेयर नहीं करोगे तो वो लोग तो तुम्हारे से पहले निकल जाएगा एग्जाम पर। तो इसलिए लेटरल का कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा तो रेगुलर क्लास के साथ क्लास करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर पे। ठीक है, चलो कल कल तुम्हारा क्लास 10:40 को होगा, ठीक है। हेलो। ओके सर। ओके, वो जो शुभम सर है, शुभम सर के जो टाइम था 10:40 में तुम्हारा, मैं दो दो दिन क्लास ले लूंगा, कल और थर्सडे। ओके।